Welcome, I'm Padmaja Joshi. All of this week, we are focusing on the Jungle Mahal area of West Bengal, which is seeing back-to-back meetings and sabhas by bigwigs of the BJP and the Trinamool Congress. The reason? Its importance, not just electorally, but also for perception. Remember, it is this area where the BJP made surprise gains in the 2019 Lok Sabha election as compared to the assembly poll before it. Many were left wondering if it is because of the ground level work and mobilization that the RSS has done in this region over the years through its various organizations, the Ekal Vidyalaya being one among them. What is going on is essentially an attack on the idea of equality. यहाँ पे जो बोला जाता है शोषित वंचित जो दलित जाति है, आदिवासी, वनवासी और जो लोधा संप्रदाय है सबर बोल के उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आता है. RSS began the attack through their schools. Much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that the RSS uses its schools to push a particular worldview. Among the institutions that are run in tribal areas is the Vanvasi Kalyan Ashram, primary schools called Shishu Mandirs, and standalone schools called Ekal Vidyalaya, like the one that I am standing in right now. These organizations have been in the spotlight of late, given that former Congress President Rahul Gandhi had recently compared them, the Sangrang organizations, to the radical madrasas of Pakistan. However, the truth about them is far less menacing. In fact, during the time of COVID, when most of the schools shut down, especially here in the areas where as it is access to education is very sparse, the Ekal Vidyalayas have been of special importance to the tribal population. Here, basic education is imparted to the children, beginning with yoga and Saraswati Vandana in the morning, followed by a very rudimentary education in English, Hindi, Bengali and math. Large tribal population and Maoist insurgency have meant that for long, the access to education was restricted. And it is this vacuum that has been filled by the Sangh. It is their work at the grassroots that has also helped them build a support from the ground up. It's not without reason that even before winning Purulia and Jhargram in 2019 Lok Sabha elections, the BJP had won over 30% of the Gram Panchayats in this area. Sameer Mehto here belongs to Jhargram and has in fact grown up in a 3-generation RSS family. Now, he works with the Ekal Vidyalaya in the tribal area to ensure that the children have at least a basic access to education in this area, which finds itself very, very far removed with a lot of development. Sameer, ये बताइए कि एकल विद्यालय शुरू करने का पूरा मकसद क्या था? एकल विद्यालय शुरू करने के लिए जो बच्चे के जो ये हो रहा है, जो सरकारी विद्यालय में नहीं हो रहा है वो एकल विद्यालय में हो रहा है. ले जो बच्चे के पढ़ाई में इसके पहले जो गायत्री मंत्र है, ब्रह्मनाद्य, जो सरस्वती वंदना है, जो उसके सुबह उठकर जो उसके माता पिता है उसको प्रणाम करना है, उसको गुरुजन का क्या मतलब वो जो गुरुजन का आदर करना है, वही सिखाए यहाँ पर.
शिक्षादान करना है। यहाँ पर अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत गणित भी सिखा रहे हैं। क्या कोशिश ये है कि कम से कम हर बच्चे को थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई मिल पाए? हाँ जी, वो जो पढ़ाई लिखाई थोड़ा से जो सरकारी विद्यालय में हो रहा है वो होएगा, लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पर होगा, जो उसके कोई सरकारी विद्यालय में ऐसा कोई बच्चा है जो वहाँ पर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा से खेल कूद के साथ जो सिखाई दे रहा है उसके आनंद भी आ रहे हैं, इसलिए वही बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं गया लेकिन एकल विद्यालय में आ रहे हैं। कितने एकल विद्यालय यहाँ पर आप चला रहे हैं इस इलाके में? वो 30 विद्यालय है, पूरा लोधासुली संच है ना, उस लोधासुली संच पे 30 विद्यालय है जो आदिवासी और कोई शाबर इलाका में है, वहाँ पे विद्यालय है। तो यानी कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, लोधासुली जो एक डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ उसके अंदर आप 30 विद्यालय चला रहे हैं ऐसे? नहीं, झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में तो स्वंच ज़्यादा है, जो लोधासुली में है, वो बीनपुर में है, वो लालगढ़ में है, वो जामबनी में है, वो जो गोपीवल्लभपुर है वहाँ पे संच है। तो इतना संच से लोधासुली पे 30 विद्यालय, उसमें जामबनी से और 30 विद्यालय है, जो वहाँ पे जो सीलदा में है वहाँ पे और 30 विद्यालय है। ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि जो संघ का काम होता है, जैसे ये विद्यालय चलाना, वनवासी कल्याण आश्रम, उससे जो है बीजेपी का भी बहुत फायदा होता है, आप क्या देखते हैं? नहीं, वो अलग बीजेपी से तो मेरा कोई यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है। जो बीजेपी काम वो अलग है, मेरा एकल विद्यालय का काम अलग है। जो संघ का कोई वो काम अलग है, लेकिन थोड़ा से जो मेरा प्रार्थना है, जो यही तो सभी वो अलग है। बीजेपी का एकल विद्यालय का कोई नहीं। Basic form of education that is imparted in these Ekal Vidyalayas, but critical for communities where even that is lacking. Shakti Padam Mahato is also somebody who's been associated with the Sangh. He's a Karyakarta of the Sangh since his childhood. Shakti Padam ji, आप जो ये एकल विद्यालय चलाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता है और उसको घर वालों को पढ़ाई करने के लिए कोई इच्छा भी थोड़ा कम होता है और उसका साधन भी नहीं है, और बच्चा लोग पढ़ाई करे इसका मन में भी ऐसा नहीं आता है। उसको खाने पीने के लिए टाइम ज़्यादा जाता है, रोजगार करने के लिए, पैसा के लिए उसको बाहर में काम के घूमने जा रहा है, इसलिए बच्चे को पढ़ाई के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा नहीं है। उसको जब हम बोलेंगे धीरे धीरे करके बच्चा अब आ रहे हैं। तो आप घर वाले आराम से मान जाते हैं कौन से वर्ग के वर्ण के बच्चे यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे जो बोला जाता है शोषित वंचित, जो दलित जाति है, आदिवासी, वनवासी और जो लोधा संप्रदाय है, सबर बोल के उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आता है। पर यहाँ जो सरकारी स्कूल तो है हर गांव में, वहाँ नहीं जाते बच्चे? जाते हैं, कम बच्चे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई होता है लेकिन उसका जो अच्छा संस्कार, ये संस्कार इस विद्यालय में दे रहा है। जब सुबह उठकर पिता माता को पैर छूकर प्रणाम करना होगा और ठाकुर के प्रति, विद्या देवी के प्रति प्रार्थना करना होगा, यही सब संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा देता रहा है। और गुरुजन के प्रति नमस्कार करना, श्रद्धा करना, इस संस्कार हम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं सरकारी स्कूल में, क्योंकि ना अभी उस सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे बच्चा को खिलाई पढ़ाई और डांस और सारे कुछ उसका साथ दे रहा है, इसलिए पढ़ाई करने के लिए यहाँ आता है। पर जो लोग इसके जो संघ के जितने आपके एकल विद्यालय, शिशु मंदिर वगैरह हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि वहाँ पर हिंदुत्व सिखाया जाता है। हाँ बोलता है, लेकिन उसको आदमी को हम ऐसा बोलता है कि आप एक बार सामने से नज़दीक आकर देखिए, जो छोटा बच्चा सुबह उठकर पिता माता को पैर छूकर प्रणाम करता है, वो जो हिंदुत्व होता है तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं।
वो जो ठाकुर है, सरस्वती माता हो, उसको वंदन करता है, नमन करता है। ये यदि कोई हिंदुत्व बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सारे बच्चा सरस्वती वंदना कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, पिता माता को पैर छू रहा है और क्यों को गुरुजन को सम्मान करता है। ये यदि कोई हिंदुत्व होता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमको हमारे बच्चा को ही हम ऐसा ही सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अब जितने साल से आप यहाँ पर चला रहे हैं, अब आप ज़्यादा जितने माता पिता हैं आदिवासी वगैरह जो वनवासी हैं, उनको आप ये मना पाए हैं कि अपने बच्चों को कम से कम एक थोड़ी सी शिक्षा दे दें? हाँ, क्योंकि ना जितना साल अभी शुरू हुआ वो हर महीना में पिता माता के साथ एक बैठक होता है, इसको मीटिंग बोलता है। उस मीटिंग में सारी काम को हम डिस्कस करता है, क्योंकि बच्चा के हम क्या क्या सिखाते हैं उसका भी थोड़ा सुझाव हमको उसको भी मांग रहा है। क्या पिता माता का क्या इच्छा है, आपका मन में क्या हो रहा है, आप एक बार बोलिए। दोनों के साथ हमारा बातचीत होता है हर महीना में एक बार उसका साथ हम बैठता है, खुले बैठता है। एक डेढ़ घंटा के लिए बैठक हो रहा है हर महीना में। तो ये जो बच्चे हैं इनको पढ़ाई के अलावा आप ये भी कोशिश करते हैं कि आगे जा कर के वो स्कूल कॉलेज में जाएं, उनकी नौकरी वगैरह लग जाए? हाँ, चाहते हैं। उसको हमने पढ़ाई के साथ साथ में खेलाई के लिए विषय में भी हम ज़्यादा ध्यान देता है। वो जो ड्राइंग है वो ड्राइंग भी करता है, और जो बोल रहा है डांस, उसको भी कर रहा है। इस जो शिक्षा में आ जाएगा तो उसका मन जिधर जो जाएगा, ऐसा क्योंकि ना सारे बच्चे पढ़ाई भी करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई खेलने का कोई अच्छा होता है, कोई डांस का, कोई ड्राइंग का, और जो खेती का, जो जिधर लाइन का जाना होगा उसको ही हम सोचता है, क्योंकि वो बड़ा हो करके कुछ ना कुछ करें। May I mention, however, that the Ekal Vidyalaya is just one of the many organizations that are being run by the Sangh on the ground. However, most of them refuse to come on camera because they studiously stay away from having any electoral association. Their logic is that their work goes on the ground irrespective of whether there are elections or not. Having said that, yes, the ground level mobilization because of these organizations does stand to benefit the BJP. But to say that Didi has completely lost her hold would be a fallacy at this point. What one must remember is the two factors that will be very important in this area. One is the mobilization on the ground, and second, the anger against the TMC thanks to low-level corruption, especially in government schemes.